السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علم صرف کا سلسلہ شروع ہے اور دراست الصرف سے ہم سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 16 میں ہم اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل۔ اسم ظرف اور اسی طرح اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل، ٹھیک ہے۔ تو اسم ظرف میں جگہ یا وقت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جگہ یا وقت معلوم ہوتا ہے اسم ظرف میں، ٹھیک۔ اسم ظرف ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے، یہ جگہ یا وقت کو بتاتا ہے۔ اس کا وزن جو ہے وہ 2 وزن ہے۔ ہم یہاں لکھتے ہیں واحد اور یہاں لکھیں گے تثنیہ اور یہاں ہم لکھتے ہیں جمع، ٹھیک ہے۔ واحد کا جو وزن ہے وہ ہے مفعلن، پہلے ہم لکھتے ہیں مفعلن، ٹھیک ہے۔ ایک اور وزن ہے وہ ہے مفعلن، مفعلن اور یہ ہے مفعلن۔ یہ 2 وزن ہے واحد کے۔ مفعلن، یہاں عین کے نیچے کسرہ ہے، یہاں عین پر کیا ہے؟ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تثنیہ ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے واحد اور تثنیہ مفعلان، ٹھیک ہے۔ ایک اور تثنیہ مفعلین، ٹھیک ہے۔ جمع مفاعل، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی ہوگا، صرف حرکت جو ہے عین کلمہ کی حرکت بدلے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی مفعلانے ہوگا، مفعلانے، یہاں اعلانے ہیں، یہاں علانے ہیں۔ یہاں بھی مفعلین، ٹھیک ہے، عالین۔ یہاں جمع کا وزن سیم ہے، مفاعلو، مفاعلو ہی رہے گا، ٹھیک ہے، مفاعل۔ یہ ہے اسم ظرف، ٹھیک۔ یہ جمع کے دونوں وزن جو ہے سیم ہے، ٹھیک ہے۔ مفعلن، مفعلان، مفعلین، مفاعلو، مفعلن، مفعلان، مفعلین، مفاعلو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بنتا کیسے ہے؟ مفعلن یا مفعلن، یہ وزن ہی آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو اسی پیٹرن پر آپ بناتے چلے جائیں گے۔ ضرب یضرب سے مضربن۔ اچھا، مضربن ہوگا کہ مضربن ہوگا، اس کو سمجھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ مضربن ہوگا یا مضربن ہوگا۔ یہ 2 وزن ہے۔ تو عین کلمہ کے نیچے کیا ہے؟ یہ عین کلمہ ہے، یہاں مکسور ہے، یہاں عین کلمہ مفتوح ہے۔ تو یہ کیسے ہم سمجھیں گے؟ تو اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک ہے حرف علت، آپ کو پتہ ہے، الف یا واو، یہ ہے حرف علت، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ تینوں اسم ظرف ہو یا اسم اعلیٰ ہو یا اسم تفضیل ہو، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں اسم ظرف، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں اسم ظرف، اسم اعلیٰ یا اسم تفضیل، یہ تینوں کے تینوں یہ بنتے ہیں فعل مضارع معروف سے، فعل مضارع معروف سے۔ اور فعل مضارع معروف میں آپ دیکھیں گے کہ عین کلمہ اگر مکسور ہے تو یہاں بھی یہ عین کلمہ مکسور ہوگا، یہ والا وزن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عین کلمہ مکسور نہیں ہے تو 2 صورتیں بچتی ہیں، یا تو عین کلمہ مفتوح ہوگا یا عین کلمہ مضموم ہوگا، تو دونوں صورتوں میں یہ وزن ہے، ٹھیک ہے، مفعلون۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے فعل جلسہ یجلسو، مضارع کیا ہے؟ یجلسو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے مضارع، یہاں عین کلمہ، یہ ہے فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ۔ یہ تو یا تو یہ علامت مضارع ہے، یا تو جیم لام سین، یہ ہے روٹ ورڈ۔ جیم فا کلمہ ہے، لام عین کلمہ ہے، سین جو ہے یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لام عین کلمہ جو ہے یہ لام ہے، یہ عین کلمہ ہے۔ عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے، مکسور ہے، تو یہاں بھی عین کلمہ مکسور ہوگا، یعنی یہ والا وزن آئے گا،
एलुन आएगा, बस समझे। तो जलसा यजलिसु से क्या बनाएंगे, मजलिसुन। ये अलामत मुज़ारा ड्रॉप करते हैं, यहाँ मीम लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, और मीम पर फतह दे देते हैं, तो मजलिसुन बनाएंगे, ठीक है। ऐन कलमा अगर मकसूर हो तो ये वाला वज़न मजलिसुन। ऐन कलमा अगर मजमू जो है मफ्तू हो जैसे, या मजमूम हो जैसे खराजा यखरुजु, क्या आता है, यखरुजु, यखरुजु। अब यहाँ ऐन कलमा, ये है फ़ा कलमा, ये ऐन कलमा, ये है लाम कलमा। ऐन कलमा क्या है, मजमूम है, तो कौन वाला वज़न आएगा, ये मफ़अलुन। तो इससे बनाएंगे खराजा यखरुजु से मखरजुन, मखरजुन नहीं, मखरजुन नहीं, मखरजुन, क्योंकि ऐन कलमा मजमूम है। इसी तरह तो यहाँ ऐन कलमा मकसूर था, यहाँ ऐन कलमा मजमूम, और एक मफ्तू वाला एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे फतह से यफ ता हो, ठीक है, यफ ता हो। अब यहाँ देखिए, ये है फ़ा कलमा, ये है ऐन कलमा, ये है लाम कलमा। फ़ा कलमा क्या है, मफ्तू है, तो कौन सा वज़न आएगा, ये मफ़अलुन, तो क्या हो जाएगा, मफ्तहुन, बस समझे, मफ्तहुन। तो जलसा यजलिसु से मजलिसुन, खरज यखरुजु से मखरजुन, नसरा यंसुरु से मंसरुन, इसी तरह बनाते जाए। अब बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखनी है, देखें ये तो कायदा आप समझ गए, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं। वो क्या है, किताब में बात दी है, आप देख सकते हैं, या हम समझा रहे हैं। एक है, उससे पहले देखें किताब में जो बातें दी गई हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सर्फ ही की बहस है, इसलिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो आगे आप पढ़ेंगे, ये तफसील के साथ ये बहस होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इशारतन जो है हम बात करेंगे। देखें, एक है मिसाल, ठीक है, हरफ इल्लत आप जानते हैं, अलिफ या वाव, ये है हरफ इल्लत। अच्छा, मिसाल, एक है मिसाल, एक है अजवफ और एक है नाकिस। ये आप समझ लें यहीं पे, मिसाल, अजवफ, नाकिस, ये तीनों यहीं पे समझ लें, आगे काम आएगा। और आगे भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसको हम खोलते हैं, ठीक है। मिसाल किसे कहते हैं, देखें, अगर एक है फ़ा कलमा, एक है ऐन कलमा और एक है लाम कलमा, ये वो रूट वर्ड होता है किसी भी फेल का, ठीक है। तो फ़ा कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आ जाए, फ़ा कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर वादा, वादा याइदु होता है, ये फेल है, वादा याइदु, जैसे ज़रबा है, उसी तरीके से ये वादा है, ठीक है। ये भी फेल है, फेल माजी और सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, ठीक है। तो ये भी फेल है, वादा, लेकिन शुरू में ये वाव है, और वाव क्या है, हरफ इल्लत है। तो शुरू में अगर हरफ इल्लत आ जाए तो उसे कहते हैं मिसाल। क्या कहते हैं, मिसाल। ये जहन में बात याद रख लें, शुरू में अगर हरफ इल्लत आए तो उसे हम कहते हैं मिसाल, बीच में अगर हरफ इल्लत आए तो उसे कहते हैं अजवफ, बीच में अगर हरफ इल्लत आए तो उसे क्या कहते हैं, अजवफ। जैसे काला, ये असल में था कवाला, कवाला। अब कायदा है, वाह मफ्तू मा कबल फतह हो तो अलिफ से बदल जाता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काला ये क्या है, देखिए, काफ है, लाम है, ये बीच में अलिफ है, तो ये हरफ इल्लत है, तो ये क्या है, ये अजवफ है, ठीक है। तो जैसे वादा, ये मिसाल है, काला, ये क्या है, अजवफ है। और नाकिस, हरफ इल्लत अगर आखिर में हो, यानी लाम कलमा, यानी यहाँ हम लिखे फ़ा ऐन लाम, लाम कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आ जाए तो उसे हम कहते हैं नाकिस, उसे हम क्या कहते हैं, नाकिस। जैसे रमा यरमी, रमा यरमी, तो ये ऐन कलमा की जगह क्या है, क्या कहते हैं, आखिर में क्या है, लाम कलमा की जगह क्या है, हरफ इल्लत है, तो ये है नाकिस। अब बात समझ में आ गई। मिसाल किसे कहेंगे, फ़ा कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आए तो वो है मिसाल, ऐन कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आए तो वो है अजवफ, और लाम कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आए तो वो है नाकिस। बात समझ में आ रही है। फ़ा कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आ जाए तो वो है मिसाल, ऐन कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आ जाए तो वो है अजवफ, लाम कलमा की जगह अगर हरफ इल्लत आ जाए तो वो है नाकिस। ये बात समझ में आ गई। तो अब सुने, अगर
मिसाल से इसमें ज़र्फ़ बनाना हो, मिसाल से इसमें ज़र्फ़ बनाना हो तो उसका वज़न जो आएगा वो आएगा मफ़इल वज़न। कौन सा वज़न आएगा? मफ़इल। इसीलिए वादा का माजी क्या होगा? याइदो, याइदो, ठीक है। और इससे जब हम इसमें ज़र्फ़ बनाएंगे तो बनेगा मौइदुन। क्या बनेगा? मौइदुन। बात समझ में आएगी? और इससे हमारी बहस नहीं, इसको अभी हम रखते हैं साइड पे, ठीक है। अजवफ़ से हमारी बहस नहीं है। तो अगर मिसाल से आपको इसमें ज़र्फ़ बनाना हो तो आप बनाएंगे मफ़इलुन वज़न पर, यानी वो फ़ेल जिसके फ़ा कलमा की जगह हर्फ़ इल्लत आ जाए उसे कहते हैं मिसाल। और मिसाल से आप चाह रहे हैं कि इसमें ज़र्फ़ बनाएं तो बनाएंगे मौइदुन यानी मफ़इलुन वज़न पर। बात समझ में आ गई? और अगर नाक़िस से आप बनाना चाह रहे हैं क्या इसमें ज़र्फ़, तो वो बनाएंगे मफ़अलुन वज़न पर। इसीलिए इसमें ज़र्फ़ आएगा मरमा। क्या आएगा? मरमा आएगा, ठीक है ना, मरमा आएगा। तो अब यहाँ वो वाला कायदा नहीं लगाएंगे कि फ़ेल मुज़ारा को देखेंगे कि उसका ऐन कलमा मकसूर है तो मफ़इल आएगा, और मज़मूम और मफ़तूम है तो वो भूल जाए, वो उसमें है। ये मिसाल और नाक़िस के अलावा वो कायदा है। मिसाल और नाक़िस आ गया तो वो वाला हम कायदा नहीं देखेंगे, वो छोड़ देंगे, ठीक है। मिसाल आ गया तो ये मफ़इलुन, और अगर नाक़िस आ गया तो मफ़अलुन। बात समझ में आ गई? हाँ। और ये जो हम बताए हैं ना कि जो है ऐन कलमा मकसूर हो, जैसे जलसा यजलिसो में था, मजलिसुन, जलसा यजलिसो, ऐन कलमा मकसूर हो तो ये मफ़इल वज़न आएगा। और अगर ऐन कलमा मज़मूम या मफ़तू हो फ़ेल मुज़ारा में तो मफ़अल वज़न आएगा। ये मिसाल और नाक़िस के अलावा में है, मिसाल और नाक़िस के अलावा में है। मिसाल आ जाए तो आँख बंद करके ये वाला लगा देना है, ये वज़न बैठा देना है, और अगर नाक़िस आ जाए तो ये वज़न। बात समझ में आ गई? इसलिए एक शेर है, वो शेर अगर याद कर लेंगे तो फ़ायदा देगा। ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त, ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त, यानी यफ़इल जैसे यजलिसो, यज़रिबो, ठीक है ना। तो ज़र्फ़ यफ़इल यानी यज़रिब यजलिस, ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त यानी यज़रिबो यजलिसो से मफ़इल आएगा, मफ़इल अस्त। इसलिए ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त, यफ़इल का ज़र्फ़ मफ़इल होगा। बात समझ में आ रही है? यानी यजलिस का ज़र्फ़ मजलिस होगा, यज़रिब का ज़र्फ़ जो है मज़रिब होगा। बस समझ में? तो ये ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त इल्ला ज़नाक़िस ए कमाल व अज़ग़ैर यफ़इल मफ़अल अस्त इल्ला ज़अबवाब मिसाल। ये शेर है, ये याद रख लेंगे तो जो है बात जहन में बैठ जाएगी कि ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त इल्ला ज़नाक़िस ए कमाल। ज़र्फ़ यफ़इल मफ़इल अस्त आएगा लेकिन नाक़िस के अलावा में, इल्ला ज़नाक़िस ए कमाल, नाक़िस को मुस्तस्ना कर दिया, ठीक है। व अज़ग़ैर यफ़इल, और यफ़इल के अलावा, व अज़ग़ैर यफ़इल मफ़अल अस्त, यानी यफ़इल के अलावा से आएगा मफ़अल। बस तो अब व अज़ग़ैर यफ़इल मफ़अल अस्त इल्ला ज़अबवाब मिसाल, मगर मिसाल में नहीं, मिसाल को उससे मुस्तस्ना कर दिया। बस समझ में? तो मिसाल और नाक़िस का कायदा अलग है, बाकी में सेम कायदा है कि यफ़इल आएगा तो मफ़इल, और यफ़अल या यफ़उल आया तो मफ़अल। ये बात समझ में आ गई? चलें, तो ये है इसमें तफ़ज़ील, ये था इसमें ज़र्फ़, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें आला को, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। इसमें आला, इसमें आला, इसके अवज़ान जो है वो 3 है, याद रखना है। एक है, यहाँ हम लिखते हैं वाहिद, ठीक है, यहाँ लिखते हैं तस्निया, और यहाँ लिखते हैं जमा, ठीक है। वाहिद का वज़न जैसे मफ़अलुन, मिफ़अलुन, क्या है? मिफ़अलुन, ठीक है। इसी तरह है मिफ़अलतुन, मिफ़अलतुन, और इसी तरह है मिफ़आलुन, मिफ़आलुन,
लुन। ये 3 वज़न वाहिद के हैं, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़अलुन, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़अलुन, ये तीनों वज़न वाहिद के हैं। ठीक है। इसके बाद तस्निया के क्या वज़न देखें। मिफ़अलुन से क्या बनेगा, मिफ़अलान है। ठीक है, मिफ़अलान है। इसी तरह एक और वज़न है मिफ़अलैन है। ठीक है, लैन है। ठीक है, और जमा क्या आएगा, मफ़ाइलो। क्या आएगा, बस समझ में आ गया, जमा मफ़ाइलो। उसके बाद है मिफ़अलतुन से क्या आ जाएगा, मिफ़अलताने, मिफ़अलताने। उसके बाद है मिफ़अलतैने। ठीक है, तैने। ठीक है, यहाँ जमा भी यहाँ भी आएगा मफ़ाइलो, मफ़ाइलो। ठीक है, मिफ़अलुन, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़अलुन, मिफ़अलुन, मिफ़अलाने, मिफ़अलैने, मफ़ाइलो, मिफ़अलतुन, मिफ़अलताने, 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 मिफ़अलतैने, मफ़ाइलो। अब यहाँ आ जाए मिफ़अलुन, मिफ़अलाने। ठीक है, मिफ़अलाने। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मिफ़अलैने, मिफ़अलैने। ठीक है, मिफ़अलैने। और यहाँ आ जाएगा मफ़ाइलो। क्या आ जाएगा, मफ़ाइलो, ये आ जाएगा मफ़ाइलो। यहाँ मफ़ाइलो या नहीं है और यहाँ या है, मफ़ाइलो। बस समझ में आ गई। तो ये वज़न मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़अलुन बिल्कुल आसान है। मिफ़अलुन, वहाँ मफ़अलुन था, यहाँ मीम के नीचे कसरा है, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़अलतान। अब इसी पर आप बनाते जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिज़रबुन, मिज़रबतुन, मिज़राबुन, बस क्या दिक्कत है इसमें। तो इसमें ज़र्फ़ में जो हमने पढ़ा है जलसा यजलिसु से मजलिसुन, तो माना क्या होगा, उसका माना भी देखते हैं। मजलिसुन, बैठने की जगह। बात समझ में आ रही है। हमने कहा ना कि ज़र्फ़ किसे बताता है, वक्त या जगह को बताता है। ठीक है, उससे वक्त या जगह का हमें पता मिलेगा। तो मजलिसुन, बैठने की जगह, मज़रबुन, मारने की जगह। ठीक है, यहाँ है मिज़रबुन, तो माना क्या होगा, मिज़रबुन, मारने का आला। बस समझे, मिज़रबुन, मारने का आला। तो मिज़रबुन, मिज़रबतुन, मिज़राबुन। ठीक है, मिज़रबुन यानी मिफ़अलुन, मिज़रबुन, मिज़राबाने। ठीक है, मिज़राबैने, मज़ारिबु, मफ़ाइलु, मज़ारिबु, मज़ारिबु। मिज़रबतुन, मिज़रबताने, मिज़रबतैने, मज़ारिबु, मिज़राबुन, मिज़राबाने, मिफ़अलैने, मिज़राबैने और मज़ारिबु, मज़ारिबु। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम इसमें तफज़ील अब देखते हैं। इसमें तफज़ील ये बिल्कुल आसान है, आप अगर एक मरतबा याद कर लेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा वज़न है। इसमें तफज़ील, इसमें तफज़ील देखें। इसका एक वज़न है, क्या कहते हैं, मुज़क्कर का। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट है। तो ये है मुज़क्कर, हम लिख देते हैं, और ये है मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर का जो वज़न है, अब यहाँ हम लिखते हैं वाहिद, यहाँ लिखते हैं तस्निया, और यहाँ हम लिख देते हैं जमा। ठीक है, वाहिद का वज़न है वो है अफ़अलो, अफ़अलो। ठीक है, तस्निया का अफ़अलाने। इसी तरह लाने, अफ़अलैने, अफ़अलैने। ठीक है, इसी तरह जमा अफ़अलूना, क्या हो जाएगा, अफ़अलूना। इसी तरह जमा का एक और वज़न अफ़अलीना।
افعالینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مؤنث کا آپ دیکھ لیں، افعلتن، تا لگا دے، افعلتن. افعلتن نہیں آئے گا، فولا آئے گا. کیا آئے گا؟ فعلا، فعلا، ٹھیک ہے. اس کی تثنیہ فعلا یعنی، فعلا یعنی. اس کی ایک اور تثنیہ کا ایک اور وزن فعلا یعنی، ٹھیک ہے. فعلا یعنی، ٹھیک ہے. فعلا یعنی. جمع فعلا یاتن، فعلا یاتن. اور ایک اور وزن ہے جمع کا، وہ ہے فعلن، فعلن، فعلن. افعلوا، افعلان، افعلین، افعلون، افعلینا. ایک اور اس کا وزن ہے، وہ ہے افعیلو. کیا ہے؟ افعیلو. یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ 3 ٹھو وزن جمع کے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تثنیہ کا وزن ہے، یہ واحد کا وزن ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں بھی ہے. تو اب اسی پر آپ بناتے جائیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس میں تفضیل یاد رکھ لیں. ایک مصدری معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مارنا، کھانا، پینا. تو مارنے کا جو معنی ہے نا، وہ اس میں فاعل میں زیادہ پایا جاتا ہے. مثال اس کو جو ہے مثال سے سمجھیں گے. جسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید افضل من کا، ٹھیک ہے. زید افضل من کا، زید جو ہے تجھ سے بہتر ہے، من کا تجھ سے، افضل زیادہ بہتر ہے. زید جو ہے بہتر ہے تم سے. یعنی اس طرح کر لیتے ہیں، زید کی جگہ آپ لگا لیں کیا، افضلوں کی جگہ آپ یہاں لکھ لیں ازربو، ٹھیک ہے. ازربو، زید ازرب من کا، زید تم سے زیادہ مارنے والا ہے. زید تم سے زیادہ مارنے والا ہے، زید تم سے زیادہ مارتا ہے. زید ازرب من کا، زید تم سے زیادہ زید انصر من کا، زید تم سے زیادہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو مصدری معنی کی زیادتی، مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے کس میں؟ اس میں فاعل میں، ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں تفضیل. تو اب بنائیں ازربو، انصرو، افتحو. آپ بناتے جائیں اس وزن پر، ٹھیک ہے. ازربو، ازربان، ازربین، ازربون، ازربین، ازاریبو، ٹھیک ہے. زربا، ازربو سے زربا، فعلا وزن پر زربا، زربا، زربیان، زربیین، زربیات، زربن، فعلن، زربن، فعلا یاتن، فعلن. بس سمجھ میں آئی؟ یہ فعلا مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس میں تفصیل. امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی تمرین کو دیکھیں گے. اس کے بعد کتاب ہم چھوڑ دیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم اسٹارٹ کریں گے ثلاثی مزید فی کے ابواب کو، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.